Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine at home and enjoyed your summer vacations. Now we are going to study again, and I am your science teacher, grade 6. In class 6 we are going to start our new chapter, unit number 2, which is about reproduction in plants. Please open your book at page number 16. As you know, living things have different characteristics. Among them, they can move, they can respire, they can take food, they can grow, they can go everywhere. So, they have another characteristic. So, this special characteristics of living things is called reproduction. Reproduction is the ability of an organism to reproduce new living organism of its own kind. So now concentrate on page number 16, reproduction. Reproduction is one of the characteristics of all living things. In this way, new individual plants and animals are produced to replace those that die. Death is the fact of life for all living things, including human beings. Reproduction is the way of keeping organisms alive. तो रिप्रोडक्शन वो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की जिसके ज़रिए से वो नए प्लांट्स और एनिमल्स बना सकते हैं अपने जैसे, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत जो है मौत है और हर जिंदा चीज़ ने आखिरकार मरना ही होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी नस्ल आगे बरकरार रखी जा सके. ए स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल continues as long as its members produce their young ones. A house mouse, shark, housefly, elephant or frog may live for only a few weeks or a few years. But as long as some members of each species reproduce and some of their young ones grow up and have babies, then the species will continue to survive on the earth. तो हर जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो अपने जैसे नए मेंबर्स प्रोड्यूस करता है. जैसे एक घर में रहने वाला कोई चूहा या कोई भी शार्क या हाउसफ्लाई हो या एलिफेंट हो या इवन फ्रॉग भी हो तो वो कुछ दिन ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो अपने जैसी नई चीज़ें बना के ख़त्म हो जाता है. इस तरह से एक स्पीशी यानी एक नस्ल जो है वो आगे बढ़ती रहती है और यूँ नए जो हैं बच्चे आते रहते हैं और पुराने जो हैं वो ख़त्म होते रहते हैं. Reproduction is the biological process by which new individual organisms, offsprings are produced from their parents. Reproduction वो biological process है जिसके ज़रिए से नए जानदार बनाए जाते हैं पहले से मौजूद जनरेशन यानी उनके पेरेंट्स की मदद से. Living organism can pass on their characteristic to next generation, reproduce in two ways. इसके दो तरीक़ाकार हैं बच्चों. एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, इसमें कोई नर और मादा नहीं होते. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो जो हैं वो नर और मादा दो स्पीशी होती हैं और उनके ज़रिए से नए जानदार प्रोड्यूस किए जाते हैं. Now move on to next page, page number 17. Reproduction in plants. An individual plant, like any other living organism, eventually dies. For a species of plant to survive, the individual plants must be able to replace themselves by reproduction, essential part of the life cycle of the plant. Plant reproduce in two different ways depending on their structure and environment they live in. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसी तरह से सारे प्लांट्स जो हैं, हर किस्म के प्लांट्स जो हैं वो भी अपनी स्पीशी आगे बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स बनाते हैं और इस तरह उनका लाइफ साइकिल चलता है. और इनमें भी दो ही तरीके होते हैं बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन पेरेंट आर पास्ड ऑन टू all of the offspring. Asexual reproduction produces genetically identical offsprings from one parent. Many organisms reproduce asexually when conditions are favorable. For example, when there is plenty of food and build up their numbers quickly. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है और सारे के सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स अगली जनरेशन में पास किए जाते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी सेम इंडिविजुअल जो हैं वो पास ऑन किए जाते हैं
और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसे एक्चुअली जब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल होती है। जैसे कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है तो उस पानी की वजह से पौधे जो हैं वो जल्दी से उग जाते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। Sexual reproduction requires two organisms of the same species, one male and one female. Each individual produces gametes. Sexual reproduction always involves fertilization, the fusion of the gametes to produce a zygote. Offspring receives half genes from each parent, so shows a mixture of parental characteristics. Each of the offspring is different from other offspring and the parent. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, दो तरह के यानी मेल और फीमेल, और हर एक जो है गैमेट प्रोड्यूस करता है यानी वो सेल जिसके ज़रिए नया सेल बनेगा। इसमें दोनों गैमेट्स यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्यूजन होती है और नई चीज़ एक बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट जब बन जाता है तो वो ग्रो करके नया प्लांट जो है वो बना देता है। ऑफस्प्रिंग्स जो है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों से अपने कैरेक्टर्स जो है वो रिसीव करता है तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आते हैं। जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें क्या होता है कि वो दोनों पेरेंट्स की खसूसियात उसके अंदर मौजूद होती है। अगला टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर द sepals, petals, stamen, male reproductive organ, and pistil, female reproductive organ. They are arranged in 4 rings and are attached to the receptacle at the end of the flower stalk. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में वो फ्लावर के ज़रिए होती है और फ्लावर जो है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल्स होती हैं हरे रंग की पत्तियाँ, पेटल्स होती हैं कलर्ड पत्तियाँ, स्टेमन होता है यानी मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, और पिस्टल होता है यानी फीमेल, इसको हम ओवरी भी कहते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये डिफरेंट रिंग्स में फ्लावर में जो है अरेंज हुए होते हैं और ये डंडी के ज़रिए से पौधे पे लगे होते हैं। Flowers produce the male and female gametes for sexual reproduction. They produce seeds which finally grow into new plants. Flower जो है मेल और फीमेल दोनों gametes प्रोड्यूस करता है और फिर वो फाइनली फ्यूज़ करते हैं और एक नया प्लांट बनता है। Some flowers are bisexual. These flowers have both the male and female reproductive organs. Some are unisexual. They only have either male or the female organs. कुछ फ्लावर जो हैं बाइसेक्सुअल होते हैं यानी उसके अंदर मेल भी पार्ट होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेक्स जो है वो मौजूद होता है यानी या तो वो मेल फ्लावर होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर होते हैं। लेकिन प्रोड्यूस क्या होंगे, गैमेट्स दोनों तरह के प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट भी प्रोड्यूस होगा और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होगा और उनकी फ्यूजन से सीड नया बनेगा जिसके ज़रिए से क्या होगा, नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।